مرکزی وزارت داخلہ نے آج لوک سبھا میں کشمیر سے متعلق مختلف امور پر جانکاری فراہم کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق پتھراؤ کے واقعات میں 5 اگست سے اب تک 765 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پیش ہے رپورٹ۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن مرکزی وزارت داخلہ نے جموں کشمیر کے مختلف امور کے تعلق سے جانکاری فراہم کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق 5 اگست سے اب تک کشمیر میں پتھراؤ کے واقعات میں 765 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اس ضمن میں 190 کیس درج کیے گئے ہیں۔ ایل او سی پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے کہا کہ 5 اگست سے اکتوبر 2019 تک فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کے 950 واقعات پیش آئے۔ ایم ایچ اے کے مطابق سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سیکیورٹی اہلکار مؤثر جواب دیتی ہے اور ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے۔ وادی کی تعلیم صورتحال پر وزارت داخلہ نے کہا کہ 5 اگست کے بعد اسکولوں میں طلبہ کی حاضری کم تھی، تاہم دھیرے دھیرے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ امتحانات میں طلبہ کی حاضری 99% رہی ہے۔ کشمیر کی سیاحتی سرگرمیوں کے بارے میں کہا گیا کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران 34 لاکھ سیاحوں نے کشمیر کی سیر کی، جن میں 12,000 سے زیادہ غیر ملکی سیاح شامل ہیں۔ اس دوران سیاحتی شعبے کو 25 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ پاکستان سرحد پر سیز فائر معاہدے کی بار بار خلاف ورزی سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر معاملے پر دنیا بھر میں الگ تھلگ پڑنے اور داخلی مسائل کی وجہ سے پاکستان سرحد پر مسلسل اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ پیش ہے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ رواں سال جنوری سے پاکستان نے 2700 سے بھی زیادہ مرتبہ ایل او سی اور بین الاقوامی سرحد پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ خاص کر 5 اگست کے بعد جب پارلیمنٹ نے دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا، تب سے پاکستان کی اشتعال انگیز سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان فوجی چوکیوں کے علاوہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کر رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر مسئلے پر عالمی برادری کی حمایت نہ ملنے سے پاکستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ساتھ ہی عمران خان کو اپوزیشن کی مزاحمت کا سامنا ہے اور وہاں کی معیشت کا بھی برا حال ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے لگاتار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان اس سمے ٹوٹلی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے اور پوری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے۔ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پوری طرح چھوڑ دیا ہے، مسلم کنٹریز نے اس کو پوری طرح چھوڑ دیا ہے۔ چائنا جو اس کا سب سے بڑا الہی تھا، چائناز بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ یو این میں وہ گیا، ہیومن رائٹس گیم ہے، کہیں بھی جہاں بھی گئے ان کو پھٹکار پڑی۔ ابھی اس حالات میں اگر ہم ان کی اکانومی فیکٹر کو بھی کنسیڈریشن میں لے لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو اس سمے فضل الرحمان کا جو مارچ چلا تھا، عمران کی جو ستھتی ہے بہت ہی ڈاواڈول ہے۔ اس حالت میں پبلک کا اٹینشن ہٹانے کے لیے، میڈیا کا اٹینشن لانے کے لیے اور دیش کے واسیوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بار بار سیز فائر وائلیشن کر رہا ہے۔ مدعا صرف ایک ہی ہے، تاکہ کشمیر کے اندر کوئی بڑی کانڈ جو ہے واردات انجام دے سکیں، جس سے ان کو نیشنل کنزمپشن کے لیے جو ان کی اپنی نیشنل گیلری ہے وہاں سے بھی شاباشی ملے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی یہ چیز وہ پوری طرح سے اچھال سکے۔ پاکستان کو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا اب یہ کیا کرے، کیوں؟ اب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو فوج کو اور اپنے جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ساری عمر ہمیں یہ سمجھاتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے پی او کے بھی چلا جائے گا ہندوستان میں۔ اب گورنمنٹ کیا ہے اور فوج کے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں، وہ یہ بار بار سیز فائر کا النگھن کرتے ہیں، سیز فائر کے النگھن کی آڑ میں یہ ملٹنٹس کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آئندہ دنوں صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور سیکیورٹی فورسز کو داخلی فرنٹ پر مزید چیلنجز کا سامنا رہ سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہیں ایل او سی اور آئی بی پر دراندازی کی کوششوں کو روکنے کے لیے اضافی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہم یہ مان کے چلیں کہ ہمیں اپنا جو افیکٹو گریڈ ڈومینیشن ہے اس کو پوری طرح سے تیار رکھنا چاہیے۔ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کو ہم ایک ایجنسی کے اندر لے آئیں تاکہ سارے جو انٹیلیجنس کے آپ کے ایفرٹس ہیں وہ کمبائن ہو سکیں، ایریا پوری طرح سے ڈومینیٹ کر سکیں اور ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں
ताकि कोई भी मिलिटेंट किसी भी एरिया में, अभी बेसिकली 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये एक्टिविटी है, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको अगर जरूरत पड़ती है तो ज़्यादा फोर्सेस लानी चाहिए और पूरी तरह से इफेक्टिव डोमिनेशन एंड कंट्रोल जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल, मिलिटेंस इंटेलिजेंस ग्रेड और एरिया डोमिनेशन, ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं और ये जितनी जल्दी ये कर पाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारी सोच जो है वो ये है कि मिलिटेंट्स को हम वहीं रोक लें, मिलिटेंट को अंदर आने ना दें। उसके लिए हमारी स्मार्ट फेंसिंग जो आ रही है वो है, हमारे जो इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, हमारे जो डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, वो फ्रंट लाइन ट्रुप्स के पास हैं। हमारे जो उसके अलावा जो एक ऐसे सेंसर्स हमारे हैं, हमने लगाए हुए हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में अब तक कई जवानों की शहादत हुई है, लेकिन फौज ने भी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त दबाव में है। माहिरीन का कहना है कि मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट के भी अच्छे नतायज आए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा चंद महीनों में सरहद पर और कश्मीर में हालात मामूल पर आ जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। लेह में वाक़ सियाचिन ग्लेशियर के शुमाली हिस्से में बर्फानी तोदे की जद में आकर 4 फौजी जवान और 2 पोर्टर हलाक हो गए हैं। वाक़े में एक जवान शदीद जख्मी हो गया है, जबकि एक जवान अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि ये जवान पेट्रोल टीम का हिस्सा थे जो सियाचिन ग्लेशियर के शुमाली हिस्से में 19,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात थे। इस बीच रेस्क्यू टीमें बर्फ में फंसे 7 जवानों को बचाने में कामयाब हो गई। उन्हें नुब्रा वैली के मिलिट्री अस्पताल एयरलिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि वाकया कल सहपहर को पेश आया है। काबिल जिक्र है कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बुलंदी पर वाक़ मैदान जंग है। कोराकोरम रेंज में वाक़ सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई करीब 20,000 फुट है। यहाँ ठिठुरती सर्द हवाओं और नाकाबिल बर्दाश्त ठंड में फौजी जवान दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने वादी कश्मीर का दौरा किया। आर्मी कमांडर ने इस दौरान इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने LOC पर मुख्तलिफ यूनिटों का मुआयना किया। जनरल रणबीर सिंह ने इस मौके पर कामयाब कार्रवाइयों पर फौज की सताइश की। चिनार कोर कमांडर ढिल्लन भी उनके हमरा थे। जनरल रणबीर सिंह ने DGP दिलबाग सिंह से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलर चौक के करीब राजौरी से जुड़ी जम्मू पुंछ शाहराह पर एक IED को नाकारा बना दिया और एक बड़े हादसे को टाल दिया। आज सुबह आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी ने एक पॉलिथिन में ठोस शय पाई। उसके बाद फौज ने अलर्ट जारी करके शाहराह पर ट्रैफिक को रोका। उसके बाद आर्मी के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ऑपरेशन लॉन्च करके IED को नाकारा बना दिया। उसके फौरन बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। अपनी पूरी टीमें बुला के, अपने डिफ्यूज़ल स्क्वाड बुला के उसको जो है नकारा किया। उसके बाद ये बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। आज 2.5-3 घंटे से ये पूरी रोड बंद थी और ये बड़ी बिजी रोड है। आर्मी हमारी जो सेना है उसने इसको नकारा किया। उसके बाद ही ये आमदोरफ़त दोबारा से शुरू हुई है। तो हम आर्मी की तारीफ़ करते हैं कि आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है और आम लोगों की ज़िंदगी को बचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। सुबह से ट्रैफिक थी और आर्मी वालों ने ट्रैफिक खोला है और अच्छा काम किया। आर्मी वाले हमारे लिए जो भी काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है और आर्मी ने नकारा किया। बहुत बड़ा हादसा होने से बचाने की कोशिश की है। जम्मू पुंछ हाईवे के कल्लर के मुकाम पर आज सुबह आतंकियों ने एक IED लगाई थी जिसे फौज ने नाकारा किया। सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक गाड़ियों की आमोदराफत फौज द्वारा रोकी गई थी और तमाम गाड़ियां रोकने के बाद एक सर्च जो है वो फौज की तरफ से चलाया गया और उस सर्च के बाद ये पाया गया कि यहाँ पर IED जो है वो लगाई गई है जिसे फौज ने नाकारा किया। उसके बाद भी फौज ने सर्च किया और 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों की आमोदराफत को फिर से जम्मू पुंछ शाहराह पर बहाल किया गया। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज हंदवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा IGP कश्मीर, SP पानी, DIG सुलेमान चौधरी के अलावा SSP हंदवाड़ा,
आशीष मिश्रा भी मौजूद थे। डीजीपी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स हंदवाड़ा में एक पुलिस दरबार का इनेकाद किया, जिसमें जवानों ने अपने मसाइल डीजीपी के सामने रखे और डीजीपी उनको हल करने का यकीन दिलाया। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बांडीपुरा जिले में कल रात देर गए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 2 गिरफ्तारशुदा मिलिटेंट कमांडरों की जायदाद जब्त की। जराये के हवाले से मिली इतला के मुताबिक ईडी ने बांडीपुरा के अजस इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के गिरफ्तार शुदा कमांडर तालिब हुसैन लाली की जायदाद जब्त की। वाज़ेह तालिब हुसैन लाली फोर्सेस के लिए मतलूब तरीन मिलिटेंट कमांडर था और उसे 2012 में एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ईडी की जानिब से इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान बांडीपुरा के पापाछन इलाके में भी हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मोहम्मद शफी शाह अलमारूफ डॉक्टर की जायदाद भी जब्त की। डॉक्टर को 2011 में फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था और तब से लेकर वो तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे है। कश्मीर में हालात तेजी से मामूल की जानिब लौट रहे हैं। लाल चौक श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे शाम 5 बजे तक खुले रहे। वहीं नए तालीमी साल के लिए स्कूलों में आज से क्लास वर्क का आगाज हो गया। वहीं कुछ स्कूली बसें भी सड़कों पर चलती नजर आई। तलबा को फिलहाल सादा लिबास में स्कूल आने के लिए कहा गया है। वहीं मिनी बसें और कमर्शियल तवेरा सड़कों पर मामूल के मुताबिक चलते नजर आए। वादी भर में प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट लगातार मुअत्तल है। उसकी वजह से आम लोगों को सख्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। राज्यसभा रुकन फयाज मीर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना किया है। मकतूब में राज्यसभा रुकन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि कश्मीर में जमहूरियत बहाल की जाए। उन्होंने कश्मीर में शहरियों के बुनियादी हकूक की बहाली, तमाम महरूस सियासी लीडरान को रिहा करने के अलावा उन्होंने मांग की कि मकामी लोगों के दिलो दिमाग में मौजूद अदम एतमाद के हवाले से उनसे बातचीत की जाए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने निजी स्कूलों को मुतनब्बे किया है कि अगर वो बस फीस को लेकर सरकारी ऑर्डर को लागू करने में नाकाम होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक नया हुक्म जारी करते हुए तमाम स्कूलों से कहा है कि उस मुद्दत की फीस तलबा से वसूल न की जाए जब तक तलबा को बसें फराहम नहीं की गई थी। डिवीजनल कमिश्नर का ये ऑर्डर न्यूज़ 18 उर्दू को मौसूल हुआ है। इस हुक्मनामे से इंतजामिया का उससे कबल दिया गया ऑर्डर बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में बस फीस यानी ट्रांसपोर्टेशन फीस को लेकर पिछले 2 महीने से तनाज़ा चल रहा है। हालांकि सरकार ने पहले भी एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें साफ कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल बस फीस वसूल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी। जो भी स्कूल इंतज़ामिया है उन्होंने अपनी मनमर्जियाँ चलाई और कहीं 500 रुपये छोड़ दिए, कहीं 1 महीने की छूट कर दी। इसी को मद्देनज़र रख के अब सरकार की तरफ से दूसरा ऑर्डर आया है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कोई भी स्कूल इंतज़ामिया बस फीस नहीं ले सकती, नहीं वसूल कर सकती वालिदैन से तब तक जब तक उनकी बसें सड़कों पर नहीं चलती, यानी उनकी सर्विसेज जब तक जारी नहीं होती। न्यूज़ 18 उर्दू मुसलसल इस मामले पे लगा हुआ है पिछले 1.5 महीने से। पहली बार भी आपको याद होगा कि वो जो ऑर्डर था वो भी हमने ही मंजर आम पे लाया था। अब की बार जो नया ऑर्डर आया है इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, मैं उनको भी सुनाना चाहूँगा जो स्कूल इंतज़ामिया है, इस पे साफ लिखा गया है, नो बस फी बी चार्ज फॉर द पीरियड स्कूल्स हैव नॉट ऑपरेटेड दीज बसेस टू कैरी द स्टूडेंट्स। एनी डिरेलिक्शन ऑन दिस अकाउंट बी परस्यूड स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स। ये कहा गया है कि जो इस हुक्म की, इस हिदायतनामे की खिलाफ वर्जी करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यही है कि पिछली बार भी ऑर्डर आया था, पिछली बार भी एक हिदायत जारी की गई थी, अब की बार भी। अब एक्शन का वक्त है। अगर स्कूल इंतज़ामिया ये हुक्मनामा भी नहीं मानती है तब फिर ऑर्डर निकालने के बजाय अब एक्शन करनी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वालिदैन ने हुकूमत के इस ऑर्डर का खैर मकदम किया है, ताहम उनका मुतालबा है कि इस ऑर्डर पर सख्ती से अमल की जानी चाहिए। वालिदैन ने कहा कि स्कूलों ने पहले ही उनसे बस फीस वसूल कर ली है, अब उनका मुतालबा है कि वसूलशुदा फीस को स्कूल फीस में एडजस्ट किया जाए।
उन्होंने ले लिया हाफ पैसा तो ले लिया, बोला गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है हमें हाफ लेने का है। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहे वो फीस में फिर एडजस्टमेंट हो जाए, जो हमने भराया आधा पैसा। आपको लगता है कि ये जो ऑर्डर निकले हैं, पहले एक ऑर्डर निकला था वो अक्सर स्कूलों ने नहीं माना? कहाँ चलता है ऑर्डर, तो चलता है नहीं, गवर्नमेंट निकलता है ऑर्डर कहाँ होता है? क्यों नहीं हुआ फिर? क्यों हमसे लिया गया? स्कूल वालों ने हमें फीस भी लिया है, बस फेयर भी लिया है, सब कुछ लिया है। मैं ही नहीं, सबसे लिया है। मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। आप चाहती हैं कि सरकार इस पे इम्प्लीमेंटेशन कराए? क्यों नहीं? हाँ, और क्या, ऑर्डर निकालने से नहीं चलेगा खाली? हाँ, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। खाली ऑर्डर मत है, वरना ऑर्डर तो ऑर्डर है ना, लेकिन ये स्कूल वाले नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए जो नहीं मानते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर ने एलजी मुर्मू के सियासी अमल शुरू करने के हवाले से दिए गए बयान की शदीद तनकीद की। जे मीर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। कांग्रेस सदर ने कहा कि अक्सर सियासी लीडरान जेल में है और एलजी सियासी सरगर्मियां शुरू करने की बात कर रहे हैं। चुनाव प्रोसेस में ये देश की परंपरा है, किसी भी चुनाव प्रोसेस में जाने से पहले आपको एक पॉलिटिकल वातावरण पैदा करना होता है और चुनाव जिन लोगों के ज़रिए से आप कराना चाहते हैं वो लोग ही अगर डिटेन है, हाउस अरेस्ट है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो चुनाव कोई आसमानी फरिश्ते तो आकर करेंगे नहीं। इसी जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग और सियासत से जुड़े हुए लोग ही तो पब्लिक मोबिलाइजेशन करते हैं। जब मोबिलाइज करने वाले लोग ही उनके मुंह बंद है, उनके दरवाजे बंद है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसे में इतना जल्दी चुनाव मैं नहीं समझता हूं कि ये नेक नीति का स्टेटमेंट है। हालिया बर्फबारी से पैदा हुए सूरत हाल से अभी भी इंतजामिया पूरी तरह नहीं निपट सका है। इस वक्त भी कई इलाकों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। श्रीनगर में एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने यह बात तस्लीम की। कश्मीर में हुई बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाने के बाद मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। देखा होगा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको हमने इस्तेमाल में ला के, हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फबारी भी हुई और काफ़ी ज़्यादा पावर जो हमारा ट्रांसमिशन लाइंस हैं या बाकी जो 11 kV या 33 kV की लाइंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ और उस पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त गिरे हुए थे क्योंकि थोड़ा अर्ली फॉल हो गया और इस वक्त फाइलेज वगैरह भी अभी दरख्तों पे था जिसकी वजह से डैमेज कुछ ज़्यादा ही हुआ। लेकिन शुक्र खुदा का कि मेहनत करने के बाद नताइज जो हैं वो अच्छे ही हुए, रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं और इस वक्त तकरीबन रेस्टोरेशन ऑलमोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेशन हो गया है। बारिंग कपल ऑफ एरियाज़ जहाँ पे अभी पावर का थोड़ा सिनेरियो है वो थोड़ा अभी भी वहाँ पे उतना अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज थिंग्स आर टोटली अंडर कंट्रोल। और सड़कें वगैरह तो आपने देखा कि रेगुलरली ही साफ़ हो रही थी शुरू से ही, लेकिन बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा थी कि पीछे साफ़ करने के साथ साथ स्लिपरी कंडीशंस भी हो रही थी और बर्फ़ एक्यूमुलेट फिर से हो रही थी। अभी जो पिछली दफ़ा जो एक्सरसाइज हुई, जो चैलेंज जैसे फेस हुआ, उससे ज़्यादा रिजॉल्व के साथ उसको बेहतर आइंदा आने वाले वक्तों में अगर फिर से ज़रूरत पड़ी उसको ज़्यादा बेहतर फेस करेंगे। हाँ, नुकसान तो ये तो दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि नुकसान तो दरख्तों को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। शुक्र खुदा का कि फसल ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुकी थी, लेकिन फसल को भी कुछ नुकसान हुआ है, बहुत थोड़ा, लेकिन दरख्तों को बेशुमार नुकसान हुआ है जो ऑर्चर्ड्स खास तौर पे हैं। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी ऑफिसर्स को दी गई हैं, डीसीज को भी और नीचे सारे ऑफिसर्स को, जो भी इन्वॉल्व ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हैं, रेवेन्यू के हैं, जॉइंट टीम्स बना के उनकी असेसमेंट इस वक्त हो रही है। कुछ दिनों के बाद वो असेसमेंट्स मेरे पास आ जाएंगी ताकि उनका जो भी नुकसान वगैरह हुआ है उनकी इमदाद की जाए। हालिया बर्फबारी की वजह से वादी कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ साथ बारामूला में भी सेब के पेड़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जिले से वाबस्ता सेब काश्तकार परेशान है। अब ये काश्तकार रिलीफ के लिए इंतजामिया पर नजरें मरकूज किए हुए हैं। ये तस्वीर देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से किस कदर सेब के पेड़ों को नुकसान पहुंचा है।
उधर सोपोर कस्बे में सेब के पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते मेवा काश्तकार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। इन काश्तकारों का कहना है कि अभी पेड़ों की शाख तराशी का काम भी बाकी था, ताहम कब्ल अज़ वक्त की बर्फबारी की वजह से दरख्तों की शाखें भी टूट फूट गई हैं। ऐसे में इन काश्तकारों को भारी माली नुकसान हुआ। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि मुतासिरा किसानों को माकूल मुआवजा दिया जाए ताकि इस नुकसान की किसी हद तक भरपाई की जा सके। पतिम लटि तमो कंपनसेशन दी तम दी तमो 2000 रुपये वनकन सात मार्केट नेरान छुना रज किलो इस ओतर तम 7 रुपये ओस वनकन 100 रुपये मिलान तो लेबर त वुचो तुम अत अगर वुनस 50,000 20,000 30,000 लगान कटिंग करनस वनकन लगे डबल लेबर तो अम लिहाज वनकन लेफ्टिनेंट गवर्नर वनकन येतन मौजूद सोन तरफ यह पुरजोर यह मुतालबह कि अगर अमिस गौरस अहंद दस कुन रंग चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इमन कुल दिया कह मुआवजे कित पे क्या करे। मेवा काश्तकारों का कहना है कि भारी बर्फबारी की वजह से न सिर्फ दरख्तों की शाखें टूट गई हैं बल्कि बरसों पुराने पेड़ भी जमीन से उखड़ गए हैं। इनका कहना है कि इनकी रोजी रोटी का दारोमदार सेब के बागात पर ही है। इनके पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। खत्म गमत सोन रोजगार युतु बे बगैर कहीं नो कुल लागो तथ लगन 40-50 वरी तोतामत नुकसान गो काफी गामस में सद पे रोजान वुच गवर्नमेंटस क्या करे गवर्नमेंट अगर अस करे राम नजर बाग टुकर बनोमुत अत वुचो तुह अथ पे बह गुजार करान बह पकान अथ पे यह गो खत्म वह गो सरकार ते सोचुन कह इंसाफा कर अगर कह इमदादा कर तुथ यम सत ब्रो पको। उधर महकमा बागबानी ने नुकसानात का तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया है, ताहम दूर दराज इलाकों के लोगों ने शिकायत की है कि इन इलाकों में महकमे की कोई टीम नहीं आई। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने एतराफ़ किया कि जिला में सेब के बागात को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि महकमा तखमीना लगाने का काम कर रहा है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने कहा कि इस अमल में कुछ वक्त लगेगा। मैं साउथ में भी गया, नॉर्थ कश्मीर में मैं घूम रहा हूँ, नुकसान काफ़ी सारा है। आपके वीडियोस भी आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी दिखा रही हैं, या खुद भी मैं जा रहा हूँ, खुद भी देख रहा हूँ, नुकसान है, काफ़ी सारा नुकसान है। इसको पूरा एसेस करने में या पूरा बताने में टाइम लगेगा कि कितने परसेंटेज हैं। अभी आज की डेट में मैं परसेंटेज नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्ट, रफली कुछ फिगर्स बता सकते हैं लेकिन पूरा एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं बता सकते। जिला बारामूला के रफियाबाद, सोपोर और पट्टन में अक्सर लोग मेवा सनत से वाबस्ता हैं। उम्मीद है कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से तखमीने के अमल के मुकम्मल होते ही मुतासिरा काश्तकारों को माकूल मुआवजा फराहम किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मेवा काश्तकारों ने बर्फबारी से हुए नुकसान के ज़िम्न में आज डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन को एक याददाश्त पेश की। मुतासरा मेवा काश्तकारों के मुताबिक बर्फबारी के बाद मेवा बागात को हुए नुकसान पर महकमे बागबानी के डायरेक्टर की जानिब से 30% नुकसान की रिपोर्ट पर एहतजाज के तौर पर इस हवाले से डीसी को एक याददाश्त पेश की गई। मेवा काश्तकारों ने कहा कि तकरीबन 90% मेवा बागात को नुकसान हुआ है, जबकि महकमे बागबानी के डायरेक्टर सिर्फ 30% नुकसान की बात कर रहे हैं। डीसी ने वफूद को यकीन दहानी कराई है कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी। कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया और अपने मुतालबात में ये दोहराया। जो यहाँ सर्वे हुई है, यहाँ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साहब आए थे, एक मतलब सरबरा मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, उसने ऐसी ही सर्वे की और मतलब ऑफिशियली कहा कि यहाँ 20 से 30% नुकसान हुआ। हम उसकी मजम्मत करते हैं। तकरीबन है कि मतलब तकरीबन मतलब 40 से 90% नुकसान है। हमारी डिमांड ये है कि मतलब बाग टू बाग मतलब सर्वे होकर लोगों को राहत पहुँचाए। बर्फबारी गई जबरदस्त, मुश्किलात आए। यमिस कनाली जमीन तमिस रुद बसन बात की, यमिस खार तमिस रुद बसन बात की, लिहाजा कर कमर फुट नुकसान गो। अत मज 5 कुल साबित, लिहाजा कर वनकस लेबर लगन जनाब अली रज लगन अकिस कुलिस 100 हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद तारीखी मुगल रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल बंद है। मुगल रोड पर दोनों अतराफ में बर्फबारी के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां गिराई हैं।
मुगल रोड डिवीजन और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि मुगल रोड को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। बर्फ पड़ी है, लेकिन अगर रोड में तवज्जो दी गवर्नमेंट, इस पे काम लगा दे तो रोड आसान आज भी हो सकता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू के एक सहगल हॉल में 66वां कोऑपरेटिव वीक कम इंटरैक्टिव सेशन मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का इनकाद जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की जानिब से किया गया था। इस मौके पर किसान, मेवा काश्तकार, फूलबानी से जुड़े अफराद और दीगर मौजूद थे। उन्होंने अपने कई मसाइल का जिक्र किया। कोऑपरेटिव यूनियन की शुरुआत ही हमने एक इलाका में साथ जोड़ते हुए जो कोऑपरेटिव, एक तो हमारा फूल जो है भगवान को चढ़ता है, मंदिरों में चढ़ता है और मंदिरों का ये शहर है, लेकिन फूल बिकता नालों के ऊपर है। चाहे वो रणवीरेश्वर का मंदिर हो, उसके सामने नाले पे बिक रहा हो, चाहे वो बीसी रोड के नाले पे बिक रहा है। तो ये अगर फूल नालों के ऊपर बैठ के करना है तो हमने मेयर को यही इसलिए आज दावत दी कि आप आएँ, हमें एक बूथ बना के दे दो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, साफ़ सुथरी जगह दे दो जिसमें वो फूल बेच सके। दूसरा, जहाँ दूध के लिए जो होता है तो आए दिन रोज़ रेड छापे लगते हैं कि महाराज ये दूध में पानी मिला रहे हैं, ये दूध में पाउडर मिला रहे हैं, ये दूध अच्छा नहीं दे रहे। तो हमने कहा हमें एक बूथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसी के नाम लाट ना करे, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, ऊपर जीएमसी लिखा हो और नीचे प्योर मीन प्योर लिखा हो, जिसको आपका डॉक्टर रोज चेक करे। होटल एंड लॉज एसोसिएशन अपने तरफ से लड़ती है, टूरिज्म के लिए लड़ती है कि बढ़ावा मिले, तो क्यों ना टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रमंडल के पास बड़ा बोर्ड लगाए कि जहाँ गुप्त गंगा है, देवस्थान है, वहाँ पे हमारी सोसाइटियाँ काम करें, वहाँ पे लोग अट्रैक्ट जाएं, वहाँ भी जाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर पार्वती मैया, जिसको हम शंकर जी की पत्नी बोलते हैं, वो हमारी जम्मू की बेटी है। भगवान शंकर के साथ कोई शादी हुई है और बारात जम्मू में आई, पूरे देवताओं को लेकर के वो आए चिनैनी में, तो क्यों ना बड़ा बोर्ड कटरा के अंदर जहाँ लगे कि यहाँ शंकर भगवान शादी करने आए थे। तो टूरिज्म को बढ़ावा इसी तरीके से ही मिल सकता है। मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए आज इनको यहाँ पे अश्योर करता हूँ कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हेल्प होगी, क्योंकि हम एक नई राह की तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो यंगर यूथ है तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इसको डिफरेंट फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो हमारा भी ये रोल रहेगा कि जो भी नए नए फील्ड हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स लेके ये हमारे पास आएँ। जो ये कोई ग्रो करते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनके, कोई टूरिज़्म को रिलेटेड है, तो कुछ भी प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे ये बनाते हैं अपनी सोसाइटी को लेके, तो उसकी एक मार्केटिंग भी हम करवा सकते हैं, उनको एक स्पेस भी दे सकते हैं और इनको प्रमोट कर सकते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरा इनके साथ है। इनका यही कहना है कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसकी कंजम्पशन के लिए दिक्कत आती है। हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ कोई मार्केट इनके लिए बना सकेंगे ताकि इनके वेंडर खुलें और जो बीच के बचोले ख़त्म हो, इनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन डायरेक्ट जो इनका प्रॉफिट है वो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर तक वहाँ जाए, जो हमारे नौजवान वहाँ काम करें उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आलमी हफ्ते सकाफत की मुनासबत से कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में तौसीह खुतबे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर फारूक फयाज ने सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ ने आलमी हफ्ते सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए जोर दिया कि वक्त की ज़रूरत है कि हम अपनी सकाफत की हिफाजत करें और उसको आने वाली नस्लों को उसकी अहमियत से वाकिफ कराएं। प्रोग्राम में एकेडमी के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम भी मौजूद रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे विरासत है और जो ख़त्म होती जा रही है उसको हम एक ऑडियो विजुअल फॉर्म में बुक शेप में लाएं। इस साल हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारी एक किताब इंशाल्लाह आएगी आने वाले 5-6 महीने में। वो किताब है अबाउट बिल्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो हमारी किताब होगी दैट विल बी द वैनिशिंग आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड कल्चर ऑफ कश्मीर ऑफ J&K, वो एक किताब आएगी। इसके अलावा एक हमारी बहुत ज़बरदस्त किताब आने वाली है दैट्स अबाउट मिडिवल एज में जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो एक किताब लिखी है सिरिमलो साहब ने। तो वो रिनाउंड प्रोफेसर हैं। उनका कहना है, उन्होंने दुनिया भर के तमाम म्यूज़ियमों का मुशाहिदा किया है, पूरी दुनिया के म्यूज़ियम में गए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर काम किए हैं। उनका कहना है कि 3 हमारे पास कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो वो एक किताब आएगी
इंशाल्लाह एक आध महीने में हमारी वो तैयार हो जाएगी, वो सारा उसका हो चुका है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंतजामिया लड़कियों में खेल कूद की रग़बत को तक़वियत बख्शने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही है। खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाली लड़कियों के लिए इंतजामिया खेल मुकाबलों का इनेकाद करती है और साथ ही उन्हें निसाब के साथ साथ दीगर कल्चरल सरगर्मियों में शामिल करने के लिए भी इंतजामिया इक़दाम कर रही है। देखिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की लड़कियां तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के अलावा खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मुख्तलिफ खेलों में यहाँ की लड़कियों ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जी हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ने। ऐसे इवेंट्स हर जगह पे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ है कि हमें गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है। हम ये गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी आगे जाए, हम भी नेशनल खेलें, हम भी इंटरनेशनल करें, हम भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें क्रिकेट में या बाकी सारी जो गेम्स है उनमें भी। जैसे लाइक जासिया है जो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है, बिरास इस्लाम में बहुत सारे जो क्रिकेटर्स है। हर एक बेटी को घर से बाहर निकलना देना चाहिए, क्योंकि जो लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है, क्योंकि लड़की के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपना नाम भी कमाना चाहती है और उसका करियर भी इससे बन सकता है। हालांकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जितना भी सपोर्ट हो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिले, जितना भी हो सके तो प्लीज़ एंड प्लीज़। हुकूमत की जानिब से वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ तरह की कल्चर तकारीब में यहाँ की नौजवान लड़कियाँ हमेशा पेश रहती हैं और हुकूमत की जानिब से कश्मीर के अजीम सकाफती विरसे की हिफाजत, उसे आने वाली नस्लों तक पहुँचाने और उसे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग देने की कोशिश में अपना अहम रोल अदा करती हैं। ये लड़कियां नगमे, ड्रामे और दीगर फोक गीत गाकर अपने फन का मुजाहरा भी करती हैं। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, जो भी कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, वो हम उसमें हम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं हर एक इवेंट में। एंड वी आर रियली प्राउड कि हम उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। एंड फिर चाहे वो फोक सॉन्ग्स हो या रॉफ हो, पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लड़कियां हमेशा आगे जा सकती है, ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां नहीं आगे जा सकती, लड़कियां हमेशा जा सकती है। ये माना जाता है कि एक लड़के की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है और एक औरत की तालीम, एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम होती है। अगर लड़कियां चाहे तो वो माउंट एवरेस्ट पे ही नहीं बल्कि मून पे भी जा सकते हैं, स्टार्स पे भी जा सकते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पे ये कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और हमें मौका मिलता है कि इनमें पार्टिसिपेट करने का। लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, हर जगह पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, स्कूल में, हायर सेकेंडरीज में, फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें फ़ख्र है कि हम कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जो गवर्नमेंट हमें ऑर्गेनाइज करता है उससे हम मतलब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कितना टैलेंट है। महकमा यूथ एंड सर्विसेज और स्पोर्ट्स की जानिब से वादी के मुख्तलिफ अजला में खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जाते रहते हैं। हर बार लड़कियां भी इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और जीतती भी हैं। अब जहाँ तक बात है, यहाँ पे मतलब कश्मीर में हमारे जहाँ बडगाम का जिक्र है, यहाँ पे हमें इंडोर स्टेडियम की कमी है। जहाँ पे जो मतलब इंडोर एक्टिविटीज़ है, जो बच्चियाँ इंडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहती है, उसकी भी कुछ दिन पहले एडवाइज़र साहब ने संग बुनियाद डाल दी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी तैयार होगा और जो कमियां है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी होगी। और हमने ऑलरेडी इनको एक प्रपोजल दिया है कि यहाँ पे एक हॉस्टल हो, सो दैट कि मतलब हम फार फ्लांग एरियाज़ की जो बच्चियाँ हैं उनको यहाँ लाए, उनको कोचिंग दे दे और जो बच्चियाँ आगे आके मतलब न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का बल्कि देश का भी नाम रोशन करेगी। देखिए जी, ये जो लड़कियों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन कराना है, इसका एक रीज़न है क्योंकि जो कि जम्मू एंड कश्मीर या अदर स्टेट से उसमें आप बहुत पार्टिसिपेशन देखते हैं लड़कियों की। JNK उतना नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और यहाँ पे जो वो रिलीजियस टच भी आता है उसको हम दूर करना चाहते हैं कि क्योंकि ये जो गर्ल्स हैं ये बॉयज़ से कम नहीं है, इनमें टैलेंट बहुत है। हम चाहते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि अपने टैलेंट को प्रमोट कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों से इकरा रसूल है या जासरिया जिन्होंने रिप्रेजेंट किया IPL, या जैसे एक और लड़की है जूडो खेलती है काबरा अल्ताफ़ है। बहुत ऐसी लड़कियाँ आ रही है, उनको मतलब लाइमलाइट में आ रही है कि जिनको बहुत टैलेंट है और वो अपना टैलेंट दिखा रही है बाहर। जम्मू कश्मीर की लड़कियों में सलाहियतों की कतई कोई कमी नहीं। हर शोबे के साथ साथ खेल कूद में भी यहाँ की लड़कियाँ जोश व खरोश से हिस्सा लेती हैं।
ताहम हाँ, जरूरत इस बात की है कि उन्हें खेलकूद के हवाले से तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करवाई जाए ताकि ये लड़कियां कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा कर सकें और बेहतर तरीके से कर सकें और साथ ही मुल्क और कौम का नाम भी रोशन कर पाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने अनंतनाग कस्बे का दौरा करके यहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि तमाम तरक्याती काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल कर लिए जाएं। उनके हमरा कई दीगर अफसरान भी थे। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने कई पंचायती हलकों का दौरा करके यहां जारी कामकाज का जायजा लिया। इस हवाले से डाक बंगलो खनबल में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। एसीडी अनंतनाग, डीपीओ, बीडीओज, बीडीसी चेयरमैन और सरपंच भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए जिला भर के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो दूसरे मरहले के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे ताकि आने वाले वक्त में कुपवारा जिले के तमाम कस्बेजात और देहाती इलाकों में तामीर और तरक्की के कामों में सूरत लाई जा सके। मीटिंग में अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को बैक टू विलेज के दूसरे मरहले के तहत होने वाली तैयारियों के मुतालिक जानकारी भी दी। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर ने आज जिले में जरूरी अशिया की दस्तियाबी के हवाले से जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग महकमे उमूर सार्फिन और अवामी तकसीम कारी के अफसरान के अलावा पेट्रोल और गैस एजेंसियों के मालिकान मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस के अलावा अशिया खुर्दनी की वाफर मिकदार मौजूद है। डीसी ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो सरमा के दौरान अशिया खुर्दनी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। एक और मीटिंग में डीसी पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर ने जाफरान मिशन का भी आज एक मीटिंग में तफसीली जायजा लिया। मरकजी मामलत वाली स्कीमों की अमलावरी के चलते आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में जल जीवन मिशन के तहत एक जानकारी मुहिम का एहतमाम अमल में लाया गया। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, एडीसी शबीर हुसैन और एसई हाइड्रोलिक्स जनूबी कश्मीर इफ्तिखार वानी ने मौजू पर शुरका को जानकारी फराहम की, जबकि शुरका ने बताया कि उन्हें मिशन से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं और यकीन है कि जिले में हर एक घर को पीने का साफ पानी बहम पहुंचाया जाएगा। इस मिशन के तहत जिले में तकरीबन 36,000 घरों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए त्राल पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान गढ़पुरा त्राल में एक मकामी शख्स कृष्ण सिंह को शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार किया है। डीएसपी त्राल एजाज अहमद ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस शख्स ने अपने घर के सहन में जेर जमीन शराब छुपा के रखा था और ये शख्स इलाके के नौजवानों में ये शराब फराहम कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बारामुल्ला में लोगों की एक भारी तादाद ने दरियाए जहलम पर पुल के तामीरी काम में ताखीर पर महकमे R&B और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ये पुल 2014 के तबाहकुन सैलाब के दौरान बह गया था। उसके काफी अरसे बाद महकमे R&B ने उस पर तामीरी काम शुरू किया, ताहम अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका है। मकामी लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से हजारों लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ के अरकान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में कांग्रेस के एहतजाजी प्रोग्राम के तनाजुर में रामबन में भी कांग्रेस पार्टी के अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस बहाल करने, मोबाइल पर पाबंदी, जीडीपी ग्रोथ रेट, बेरोजगारी, 2016-17 से मनरेगा इजरत वागुजार करने और दीगर मुतालबात को लेकर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को सदर हिंद को दिए जाने वाला मेमोरेंडम सौंप दिया। जम्मू पुंछ शाहरा पर सुनाई इलाके में एक ट्रक और टाटा मैजिक के दरमियान टक्कर के नतीजे में ऑटो में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम है।
اس میں 5 آدمی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. تو اس میں 3 کی جو ہے حالت ابھی تھوڑی سی کریٹیکل ہے, وہ انتظام کر رہے ہیں, اس کے بعد شاید ریفر کرنا پڑے. 2 جو ہیں اسٹیبل ہیں. ٹوٹل ہمارے جو زخمی پیشنٹ یہاں پہنچے ہیں وہ 5. پونچھ میں ضلع کانگریس کمیٹی کی جانب سے ملک کی سابق وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی کے یوم پیدائش کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس موقع پر مقامی لوگوں کے کئی مسائل کو اجاگر کیا گیا.